Hello students, so let's continue our topic, chapter number 1, what is psychology. Okay, so in the last class we studied about the basic and applied psychology. Okay, so today we are starting a new topic, that is psychology and other disciplines. कि साइकोलॉजी का अदर डिसिप्लिन से रिलेशनशिप क्या है, दिस इज़ द टॉपिक अबाउट कि how the psychology related to other disciplines and what are the theories and what are the things, how they interchange and interrelated with each other. Okay, disciplines means the other subjects also. So students, any discipline which deals with people would definitely recognize the relevance of the knowledge of psychology. As you all know that psychology's subject matter is human beings, human behavior. Okay, so any discipline which is related to people, कोई भी ऐसे discipline जो कि people से deal करती है, लोगों से, human behavior, human beings, that is definitely related to the psychology. Okay, and it interchange and interrelated with each other. So this trend has led to the emergence of interdisciplinary approach in the field of psychology, because psychology and other disciplines related to each other and they कुछ चीज़ें हम साइकोलॉजी से कुछ चीज़ें साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से लेती है और कुछ साइकोलॉजी से लेते हैं. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. This is the new trend and this is the interdisciplinary approach in the field of psychology. So let's start with the topic with the different subjects who is related, interrelated with the psychology. So our first subject is the neurology. Students, as you all know, neurology means that is related to the brain. Brain is related to the mind, as you all know, and mind is the subject matter of psychology. That's why neurology totally तो हम नहीं कह सकते, पर most of the things depends on the psychology. यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं brain और mind की जो आपस में interrelated होती हैं, interchange होती हैं. That's why neurology साइकोलॉजी से बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से फील्ड में इंटर रिलेटेड है. थ्योरीज लेते हैं जब ब्रेन की और माइंड के रिलेशनशिप की बात आती है. अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर विच वी स्टडीड अर्लियर. सो दिस इज द न्यूरोलॉजी विच रिलेटेड टू द ब्रेन एंड विच इज इंटरडिसिप्लिनरी related to the psychology also. Our next subject is physiology. Physiology means the physical process. Physiology deals with the physical process. Students, you all studied about the developmental psychology, development of human beings. Okay, so physiology में हम जो भी पढ़ते हैं दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो दैट्स वाई फिजियोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड to the psychology, because if we want to study the physical changes, physical processes, so we need to understand, we cannot deny the role of psychological changes also. अगर हम किसी बच्चे की डेवलपमेंटल प्रोसेस की से बात करें तो उसके साथ जब हमने पढ़ा था ना कि कुछ चेंजेस होते हैं जो फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं. दैट्स वाई फिजियोलॉजी is also related to the psychology. Our next subject is biology, biological process. Students, biological, there are many reasons, or we can say the biological processes which determine our behavior, which determine the behavior of a human being. बहुत सारे बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं. एज यू ऑल नो, हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हम देखते हैं, सुनते हैं. हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ऑल आर रिलेटेड टू बायोलॉजी. ओके, और जैसे ही बायोलॉजी से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रिलेटेड है, हमारे हार्मोन, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारी चीज़ें जो ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं. और उन सब का रिलेशन साइकोलॉजी से भी है, क्योंकि वही सब चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेसेस को, हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, हमारे माइंड को और हमारे बिहेवियर को भी डिटरमाइन करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं और अफेक्ट करती हैं. दैट्स वाई बायोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द psychology. Okay, and next is anthropology. Students, anthropology is a subject which deals with the origin of human being, कि कैसे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस चली एट द डिफरेंट प्लेसेस, कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट
मूव ऑन हुई और कैसे डेवलपमेंट के बाद जो उनका बिहेवियर था, सोशल बिहेवियर था लोगों का, जो भी था वो कैसे डील हुआ. तो दैट्स वाई anthropology deals with the origin of human beings and the customs and beliefs and the development of human beings. So students, that's why psychology is also related to the anthropology. We can say कि anthropology जो है वो base ही अपना psychology से लेती है, because if we want to study the origin of human beings of development, तो उनके हम cultural beliefs भी पढ़ेंगे, हम उनके emotional development, हम उनके psychological development, हम उनके physiological development, हम सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे. तो उस टाइम पे लोगों का behavior कैसे होता था, लोगों का society कैसे norms बनती थी. तो जो anthropology, as I told you, deals with the origin of human beings. So that's why anthropology is also related to the साइकोलॉजी, और वो वहाँ के उस टाइम के सोशल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं. ओके, और नेक्स्ट इज सोशलॉजी. सोशलॉजी इज डीपली इंटर to the with the psychology. As you all know, we have a branch also, social psychology. So in sociology, basically sociology subject deals with the study of social groups, कि कैसे how social groups forms, how they develop, कैसे उनका ओरिजिन होता है, वो कैसे बढ़ते हैं और लोग आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे मेक अ बॉन्डिंग विद ईच अदर, कैसे सोशल ग्रुप्स के अंदर, सोशल ग्रुप्स क्यों, हम अगर बात करें दो फ्रेंड्स की तो वो भी सोशल ग्रुप है, हम बात करें किसी फैमिली की तो वो भी सोशल ग्रुप है, और वहाँ पे बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्यों लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं या क्यों कोई लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द सोशल ग्रुप्स. एंड व्हेन सोशलॉजी स्टडी द बिहेवियर, स्टडी द सोशल ग्रुप, सो सोशलॉजिस्ट ऑल्सो need to study the behavior and the human psychological processes during the development of social groups. So that's why sociology is also related to the psychology. Okay, our next subject is philosophy. Next discipline is philosophy. सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिलोसफी. स्टूडेंट्स, फिलोसफी डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि एक सेट ऑफ आइडिया है कि हाउ पीपल, कैसे हाउ अ पर्सन शुड बिहेव बेटर, हाउ दे इंटरैक्ट, हाउ दे रिलेट विद द नेचर. ह्यूमन बींग का और नेचर का क्या रिलेशनशिप है, ह्यूमन बींग्स का स्पिरिचुअलिटी, भगवान के साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस क्या है, और अगर हम ह्यूमन लाइफ में हैं, इफ वी आर ह्यूमन बींग्स, तो व्हाट इज़ द मोटिव of our life, how the human being and soul is related. So they basically philosophy deals with the nature of mind, कि हमारा मन भी कहीं ना कहीं उनको पढ़ना होता है. As you all know, earlier time psychology also was a part of philosophy, and after the 19th century it derives itself from the philosophy. उसके बाद साइकोलॉजी अपने आप को इस्टेब्लिश किया. तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का तो ओरिजिन ही फिलोसफी से है, तो ये फिलोसफी से तो बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स वाई फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इज इंटर रिलेटेड, क्योंकि फिलोसफी में भी हम सोल के बारे में पढ़ते हैं, और अर्लियर टाइम साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीड द सोल. ओके, so that's why philosophy interrelated with the psychology. Our next is economics. जो economics के स्टूडेंट देकर अंडरस्टैंड बेटर कि how economics related with the psychology. If economics want to study the consumer behavior, students consumer behavior बहुत important है. consumer behavior कैसे होता है, कैसे चलता है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होगा, कब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होगी, कब डिमांड बढ़ जाएगी, किस टाइम पे सप्लाई होगी. जैसे आज यू ऑल नो कि सीजन्स आते हैं, डिफरेंट समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, तो उस टाइम पे लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा होगा, कैसे लोगों का डिमांड बिहेवियर होगा, कैसे कंज्यूमर बिहेव करेंगे. अभी कोविड-19 में सबको पता है कि लोग बाहर खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो इट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर. और इकोनॉमिक्स को लोगों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है अपने इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स
बहुत ज़्यादा रिलेटेड है साइकोलॉजी से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर कौन होता है? ह्यूमन बींग्स. सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज़ very much related with the psychology. Okay, and next is political science and sociology. स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, एज यू ऑल नो, पॉलिटिक्स, लोगों की पॉलिटिक्स को किसी को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. वी स्टडी द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स एज वेल एज देयर साइकोलॉजी ऑल्सो, कि हाउ पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म, कैसे उनको वो बनते हैं और उनकी उसके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं, उसके पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ओरिजिन के पीछे क्या मोटिव्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं. ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. ओके, एंड सोशोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं. सोशोलॉजी सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस, we studied earlier also that computer science is very much related with the psychology, because computer science जब हम artificial intelligence की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में some psychologists believe that our brain work as a computer. okay, first thing तो ये हो गई. second, if computer science talk about the artificial intelligence, तो they उनको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी पढ़ना, कि लोगों को साइकोलॉजी कैसे, हाउ दे मेक द रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे वो रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं. अब अगर हम कंप्यूटर्स के पे हम लोग जो कंप्यूटर्स के जो नए नए ऐप्स आते हैं या लैंग्वेजेस होती हैं, वो कैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं. तो नेचुरल है, दे नीड टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर्स ऑल्सो, ह्यूमन टेंडेंसी ऑल्सो, ह्यूमन नेचर ऑल्सो. सो दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द साइकोलॉजी. Our next topic is law and criminology. Students, law and criminology is also related with the psychology, because as you all know कि behind any crime there is a reason, there is a cause. okay, और cause कुछ भी हो, उसके लिए हमें किसी पर्सन की साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने कोई मर्डर किया है सपोज़, सो क्रिमिनोलॉजी उसको रीड आउट करेगा, स्टडी करेगा कि ये मर्डर क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ को पढ़ेगा, और कैसे ये क्राइम कमिट हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ दैट पर्सन व्हेन ही कमिट एनी क्राइम. सो इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एंड दैट्स वाई as well as it is a subject matter of psychology also, because साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दोनों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत डीप रिलेशन है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी भी साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी कर रहा है, एंड साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीड द ह्यूमन बिहेवियर. एंड आफ्टर द स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, देन द लॉ इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द लॉ पर्सन्स, की उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए किस तरह का लॉ होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसका माइंडसेट कितना होना चाहिए. एज यू नो, जुवेनाइल कोड्स होते हैं, छोटे बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए अलग तरह के पनिशमेंट्स हैं, अलग तरह के ऑफेंस के लिए अलग तरह के अलग अलग आईपीसी की वो बनी हुई है कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए तो इतनी सज़ा है, इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए इतनी सज़ा है. ये सब कुछ किसने डिसाइड किया है? साइकोलॉजी. व्हेन द लॉ पर्सन स्टडीड द बिहेवियर, द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड दे डिसाइड द लॉ फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम. सो दैट्स वाई लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी ऑल्सो बिलोंग विद द साइकोलॉजी. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन इज़ और न्यू ट्रेंड. हम कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है. किससे? साइकोलॉजी से. कैसे इंटर रिलेटेड है? देखिए, मास कम्युनिकेशन मीन्स द जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, और जो हमारा मीडिया जो हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं या हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऑल इज़ अंडर द मास कम्युनिकेशन, ऑल आर अंडर द मास कम्युनिकेशन. सो जैसे किसी को कोई दे
जो मास कम्युनिकेशन के जो लोग होते हैं दे नीड टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी। सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे बनते हैं, पहले सबसे पहले वो लोग ह्यूमन बींग्स की पूरा का पूरा साइकोलॉजी स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अटैच करेगी। कुछ ऐड होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो एकदम से क्लिक कर जाते हैं, हमारे इमोशन से अटैच हो जाते हैं। तो व्हाट दे डिड, दे फर्स्ट दे स्टडी द ह्यूमन बींग्स टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कि क्या चीज़ होती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, कौन सा कलर है जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, कौन सा टाइम है या कौन से बात है या कौन सी पंच लाइन है जो इस चीज़ के लिए उन्हें अट्रैक्ट करेगी, कैसे वो अटैच होंगे, कौन सा फेस है, कौन से पर्सन है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो वो सारा का सारा लोगों का पूरा बिहेवियर, लोगों की टेंडेंसी स्टडी करने के बाद ही कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं वो न्यूज़ भी तभी बोलते हैं, उन्हें पता है कि इस टाइप की लाइन और इस टाइप की न्यूज़ जो होती है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। सो दैट्स वाई मास कम्युनिकेशन पीपल ऑल्सो नीड टू स्टडी द psychology of the human beings, the behavior, the tendency of human beings, the psychological process before development of any advertisement, any program. Okay, so this type mass communication also related with the psychology. Okay, the next is architecture and engineering. So students, our next topic is architecture and engineering. This is our next discipline. So students, when architecture and engineering, as you all know, these all related to the house making, building making, and engineering related to the making the new gadgets, making the new inventions, okay, making the new machineries. Okay, so when an architecture and engineer wants to invent or design any new house, any new machinery, any new building, so they need to study the psychological study of the human beings, of the human behavior, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट हो सके उन सब लोगों के लिए। सो आर्किटेक्चर में व्हेन एन आर्किटेक्चर डिज़ाइन एनी building, any house, so they keep this thing in mind कि वो psychologically ह्यूमन बींग्स के लिए एंड प्लस फिज़िकली ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो, तो जो भी चीज़ बने वो उन लोगों को हेल्प करे और उनकी लाइफ को और अच्छा बनाए। सो दे रीड एंड स्टडी द ह्यूमन psychology as well as human physiology also. Okay, and when an engineer design any machine, any machinery, any gadget, any new thing, so they also study the psychology. कैसे कि वो लोग भी पहले किसी भी मशीन को इन्वेंट करने से पहले वो ये देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, उन लोगों के लिए कंफर्ट जोन कहाँ पे आता है और कैसे वो लोग किसी भी ह्यूमन बींग्स की लाइफ को और इजी और कन्वीनियंट बना सकते हैं। तो इस तरह से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी ह्यूमन बींग्स की लाइफ को स्टडी करते हैं एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू द psychology. Students, our next discipline is medicine. देखिए स्टूडेंट्स, when we talk about the medicine, it is a very famous saying कि कोई भी डॉक्टर जो है वो बेस्ट तभी होगा जब वो लोग अपने पेशेंट्स का फिज़िकल ट्रीटमेंट तो करें ही एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करें। कुछ अब हम लोग भी जब से साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनका बेस जो होता है वो साइकोलॉजी होता है, लाइक हेलुसिनेशंस होते हैं, फोबियाज़ होते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। तो फिजिशियंस जो होते हैं या मैं कह सकती हूँ और भी जो बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, दे नीड टू स्टडी द ह्यूमन साइकोलॉजी व्हेन दे मीट एनी पेशेंट्स, दे रीड द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो टू ट्रीट एनी पर्सन। एंड स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेंसिव केयर यूनिट्स ICU, सो दे जो डॉक्टर्स होते हैं दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ ICUs वेरी पॉजिटिव। वो वहाँ पे बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, पॉजिटिव और लाइट सा, जिससे कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज ना हो और अपने आप को जल्दी से ठीक होने वाले कंडीशंस में लेकर के आए। सो मेडिसिन्स, वी कैन से द डॉक्टर्स का जो फील्ड है वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है और वो भी साइकोलॉजी से बहुत कुछ लेता है। एंड वी ऑल नो एज अ साइकाइट्रिस्ट वी यूज़ द मेडिसिन
we use the medical line also. Our next discipline is music and fine arts. Students, music in fine arts very much related with the psychology, and कुछ चीज़ें हम म्यूज़िक से लेते हैं और कुछ चीज़ें म्यूज़िक हमसे लेता है. देखिए सपोज एनी now suppose when a musician wants to compose any music, compose any song, they read the human psychology. Sometimes you listen the slow music, sometimes you want to listen some fast music, so it is all related to your mind. ओके, सो दे कीप दिस थिंग इन माइंड कि लोगों को कैसा पसंद आएगा, लोगों का माइंड मेंटल लेवल क्या है, मेंटल सेट क्या है. ओके, एंड sometime the psychology also uses some therapy. This is a which we call music therapy for the treatment of psychological patients, psychological disorders. देखिए एक recent study I have studied कि एक बहुत ही रिसेंट स्टडी है कि म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू लोगों के जो पेन होता है उसको कितना इंटेंसिटी तक हम कम कर सकते हैं. इस पर एक रिसर्च चल रही है आजकल और एक दो रिसर्चेस हो भी चुकी हैं. सो जस्ट लाइक दैट व्हेन म्यूजिशियंस study the psychology, we also take the help of music in our field. Okay, and fine arts, as you all know, fine arts is a very is a आर्टिस्टिक थिंग. ओके, और आर्टिस्ट होते हुए हम साइकोलॉजी में कलर्स का कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, कई पेंटिंग्स होती हैं, और फाइन आर्ट्स के कई आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स होती हैं. हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं. एंड व्हेन एन आर्टिस्ट वांट टू मेक एनी स्कल्पचर, एनी पेंटिंग, दे ऑल्सो यूज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन टेंडेंसी, उनके लाइक डिसलाइक्स को रीड करते हैं कि लोगों को कहाँ पे, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग कि लोगों को कहाँ पे किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं. एंड आफ्टर दे व्हेन दे स्टडी द साइकोलॉजी, आफ्टर दैट दे मेक एनी न्यू पेंटिंग स्कल्पचर. ओके स्टूडेंट्स, सो this is all about the disciplines which are intensely related to the psychology. Okay students, thank you.